Good morning, everyone. Boarding. This is the sum we will be doing today in front of your screen. On 1st April 2012, Mr. Vinay, this is the person who is doing investment. Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees 10 each of Spectrum Limited, purchased at a cost of rupees 15 per share. तो इसके पास हैड मतलब पहले से है, परचेज्ड नहीं है. मिस्टर विनय हैड बोला है स्पेक्ट्रम लिमिटेड का शेयर्स, मतलब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है. ऑन 1st April 2012, Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees 10 each of Spectrum Limited at a cost of rupees 15 per share. मतलब ये जो 15 है per share, it is the cost, and 10 rupees is the face value, और the unit number of shares is 40,000. मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू भी मिल जाएगा एंड कॉस्ट भी. नाउ ऑन 1st May 2012, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited. So 10,000 को उसने एक दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदा है, सत्यम लिमिटेड का. फेस वैल्यू इज अगेन 10 एंड ही हैज परचेज फॉर 25 रुपीज पर शेयर. तो कॉस्ट वैल्यू है 25 पर शेयर. 10,000 शेयर्स खरीदा है सत्यम लिमिटेड का. On the same day, he also purchased 20,000 equity share of Spectrum Limited at rupees 12 each. See, a person can invest in more than one company share. तो यहाँ पे जो मिस्टर विनय है, he is investing in Spectrum Limited also and in Satyam Limited also. तो सत्यम लिमिटेड का उसने 10,000 शेयर खरीदा और सेम 1st May को उसने स्पेक्ट्रम लिमिटेड के भी 20,000 शेयर्स खरीदे 12 रुपीस में. एंड ऑन 1st July 2012 ही सोल्ड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ सत्यम लिमिटेड एट 22 रुपीस पर शेयर. तो जब भी सेल्स होगा तो प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा. एंड देयर इज गिवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. Board of Directors of Spectrum Limited announced right shares of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares held for rupees 20 each. तो मतलब क्या बोला है स्पेक्ट्रम लिमिटेड ने कि एक राइट शेयर मिलेगा for every 3 shares held. Means 1 share will be given for every 3 shares held at rupees 20 each. Full amount was payable by 31st August 2012. Full amount was payable by 31st August 2012. शेयर होल्डर्स मतलब यहाँ पे हमें राइट शेयर्स कितना है वो निकालना पड़ेगा. एंड द अमाउंट ऑफ पेबल at the issue is 20 rupees per share. Shareholders were allowed to renounce their right either in part or full to the outsiders. Means the shareholder can sell their right shares, पूरा का पूरा सेल कर सकते या तो आधा सेल कर सकते हैं to the outsider according to their wish. तो मिस्टर विनय ने क्या किया, 40% renounce मतलब sold 40% of his right at rupees 5 per share and subscribed for the balance. मतलब जितना भी राइट शेयर मिलेगा उसका 40% उसने सेल किया, रिनाउंस किया. रिनाउंस करना मतलब सेल करना. ही रिनाउंस 40% ऑफ हिज राइट and subscribed, purchased the balance. मतलब 60% राइट शेयर्स उसने खरीदा. जितना भी मिलना चाहिए शेयर्स उसमें 40% ही सोल्ड and 60% ही purchased.
On 1st December 2012, Mr. Vinay sold 5,000 shares of Spectrum Limited and 2,000 shares of Satyam Limited at rupees 30. 5,000 rupees का 30 में सेल किया and 2,000 Satyam का 27 rupees per share respectively. See, on 1st December 2012, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectrum Limited and 2,000 equity shares of Satyam Limited at rupees 30 and 27 per share respectively. Rupees 30 and rupees 27 per share respectively. You are required to prepare. हमें क्या करना है, दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विनय हमें प्रिपेयर करना है. We have to prepare investment in equity shares of Spectrum Limited and investment in equity shares of Satyam Limited. So here date particulars, working note, here working note में which value, nominal value, cost, डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वी कैन अवॉइड दैट कॉलम. वो कॉलम नहीं बनाएंगे तो चलेगा बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं आएगा. क्यों? डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी. डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी. सो डिविडेंड अगर क्वेश्चन में होगा तो ही हमें उसका कॉलम प्रिपेयर करना है, नहीं तो there is no need to prepare the column. So date particulars, working note, nominal value, cost, date particulars, working note, nominal value, cost. तो यहाँ पे हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर भी दो बनाना पड़ेगा. our working note में बिकॉज दो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, दो कंपनीज है तो हमें वर्किंग नोट में भी दो बार प्रिपेयर करना पड़ेगा. कॉस्ट स्ट्रक्चर में हाउ मेनी कॉलम्स? 4. One is particulars, units, nominal value and cost. Same way सेकेंड वाले में भी ये कौन सा कंपनी का बनाएंगे? ब्रैकेट में स्पेक्ट्रम लिमिटेड, और यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर which is the other company सत्यम लिमिटेड. दोनों कंपनी के लिए we will prepare separately. Particulars, units, nominal value and cost. Okay. Now we can go to the question. We can start. What is the date given? सबसे पहले अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को, 2012 अप्रैल 1 को क्या हुआ है? They say that Mr. Vinay had 40,000. Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees 10 each of Spectrum Limited, purchase at 15 per share. तो यहाँ पे had means this is balance, to balance bought down. कितना? Just do the multiplication. 40,000 into 10 कितना हो जाएगा? 40,000 into 10,
40,000 into 10 means 4 lakh, correct? And 40,000 into 15 कितना होगा? Multiply करो, cost is 15. So how much is it coming? 6 lakh, correct? Nominal value is 4 lakh and cost is 6 lakh, मतलब 10 रुपए का शेयर है एंड 15 रुपीज में खरीदा है. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी वी विल राइट स्पेक्ट्रम का ओपनिंग बैलेंस 40,000 यूनिट, 4 lakh and 6 lakh. So we have written this. Now what we will do, on 1st May 2012, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited, face value 10 at rupees 25 per share. तो सत्यम लिमिटेड में कब खरीदा? May 2012. सो यहाँ खरीदा है तो वी विल राइट हियर May 2012. May 1 को क्या खरीदा? खरीदते हैं तो व्हाट विल हैपन टू कैश बैंक? कितना खरीदा? 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का 25 रुपीज में खरीदा. सो 10,000 into 10 is 1 lakh and 10,000 into 25 is 2,50,000, correct? 2,50,000. सो दूसरे में लिखना पड़ेगा सत्यम में परचेज किया 10,000, 1 लाख के हिसाब से कितना होता है? 2,50,000. इसके बाद लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन. ऑन द सेम डे, मतलब May 1 को ही ऑल्सो परचेज्ड 20,000 शेयर्स ऑफ स्पेक्ट्रम एट 12 रुपीज. तो स्पेक्ट्रम में भी उसी दिन शेयर खरीदा है. तो वी विल गो, कौन सा डे है वो? May 1 को स्पेक्ट्रम में भी शेयर्स खरीदा है. अब खरीदते हैं तो व्हाट विल हैपन? कैश विल गो आउट. कितना शेयर खरीदा जरा देखो अगेन. स्पेक्ट्रम में कितना शेयर खरीदा? 20,000 एट 12 रुपीज. 20,000 शेयर्स खरीदा. सो 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10 इज 2 lakh. एंड खरीदा कितने में? 12 रुपीज में. 20,000 इंटू 12 इज 2,40,000. सो स्पेक्ट्रम में भी वी विल हैव टू ऐड. स्पेक्ट्रम में add purchasers, add purchasers. कितना शेयर खरीदा? 20,000 शेयर. This becomes 2 lakh and this becomes 2,40,000. तो टोटल कितना हो जाएगा? 60,000, 6 lakh and 8,40,000. कितना आएगा? 6 lakh plus 2,40,000 को ऐड करो. How much will you get? 8,40,000. So we will have to write, add that. दोनों को ऐड करेंगे 6 lakh and 2,40,000. We will get 8,40,000. So now let us go to the question. यहाँ तक हो गया. 12 on the same day he also purchased 20,000 equity shares of Spectrum at 12 each. Now they say on 1st July 2012, on 1st July 2012 he sold 2,000 shares of Satyam Limited at 22 per share. Satyam Limited का शेयर सेल किया है. तो सत्यम लिमिटेड में जाएंगे. कौन से डेट में? जुलाई 1 को सेल किया तो क्रेडिट साइड हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. बाई कैश बैंक 22 रुपीज में सेल किया 2,000 शेयर्स. सो 2,000 शेयर मतलब 2,000 इंटू 10 is 20,000. But 2,000 into 22 is how much? 2,000 into 22 मल्टीप्लाई करो. 2,000 into 22 कितना? 44,000.
2000 का 2000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उसको सेल कर दिया 44,000 में, 22 रुपीज में. नाउ व्हेनेवर देयर इज अ सेल, we have to find out profit or loss on sale. Profit or loss on sale of Satyam. सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस इज 44,000. इसमें से लेस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट. सो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लेस सेल, बिकॉज सत्यम लिमिटेड का गुड्स इस सत्यम लिमिटेड का शेयर सेल कर रहे. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 20,000 into 2,50,000 डिवाइड बाई 1 lakh. कितना आ रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 20,000 into 2,50,000 divide by 1 lakh. How much are you getting? How much are you getting? Are you getting 50,000? Are you getting 50,000? देखो, आर यू गेटिंग 50,000? तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? कॉस्ट है 50,000 एंड सेल किया है 44,000 में. सो इट इज अ लॉस ऑफ हाउ मच? 6,000. हाउ प्रॉफिट? सेल किया 44,000 में एंड कॉस्ट है 50,000. सी, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट. उसका वैल्यू है 50,000 और आपने सेल प्राइस किया है, सेल किया है हाउ मच? आपने सेल किया है 44,000 में. सो इट इज अ लॉस. सो नाउ लॉस है तो कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा. लेकिन कौन से कंपनी के? जुलाई 1 बाई, यहां से इट विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $6,000. डन. इसके बाद लेट अस गो टू द क्वेश्चन. They say board of directors of Spectrum announce right shares in the ratio 1 share for every 3 shares held at 20 rupees. तो पहले तो राइट शेयर कितना है स्पेक्ट्रम का निकालते. वर्किंग नोट में जाएंगे तो वी विल सी राइट शेयर्स के बारे में. राइट शेयर्स इन स्पेक्ट्रम लिमिटेड. सो रेशो क्या है? रेशो है 1 राइट शेयर और 3 इक्विटी शेयर. 3 इक्विटी शेयर रहेगा तो 1 राइट शेयर मिलेगा. कैसे मालूम? गिवन इन द क्वेश्चन. 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड. 3 शेयर रहेगा बैलेंस में तो हर एक 3 शेयर के लिए 1 राइट शेयर मिलेगा. हमारे पास कितना है स्पेक्ट्रम में टोटल? 60,000. हमारे पास टोटल कितने शेयर है? 60,000 शेयर है. तो उसके बदले में हमें कितना मिलेगा? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो. जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सी हाउ मच यू विल गेट. क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 into 1 डिवाइड बाई 3. कितना मिल रहा है? 20,000. हमें आंसर मिल रहा है 20,000 राइट शेयर.
सो 20 हमें आंसर मिला 20,000 राइट शेयर्स। बट क्या मिस्टर विनय ने सारे राइट शेयर्स खरीदा या कुछ रिनाउंस किया? खरीदा तो पूरा कंपनी से, बट पूरा क्या रखा अपने पास या रिनाउंस किया, सेल किया किसी और को? तो क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है दैट विनय ने रिनाउंस किया 40% ऑफ हिज राइट एंड सब्सक्राइब फॉर द बैलेंस, मतलब उसने कितना सेल किया किसी और को? ये 20,000 में से 40% रिनाउंस किया तो 60% सब्सक्राइब किया। 60% कितना होता है 20,000 का? 20,000 का 60% मतलब कितना? 12,000 राइट शेयर्स परचेस्ड। रेस्ट क्या किया? रेस्ट रिनाउंस्ड। हमारे लिए उसने जो रिनाउंस किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसने कितना खुद के लिए रखा। उसने खुद के लिए रखा, ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ 12,000 राइट शेयर। तो स्पेक्ट्रम में जाएंगे, व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द डेट ऑफ राइट शेयर, कब तक पैसा पे करना है? फुल अमाउंट वॉज पेएबल बाय 31 अगस्त। सो यहाँ पे डेट लिखेंगे अगस्त 31। तो यहाँ पे राइट शेयर है तो मनी विल गो आउट, वी विल राइट हियर टू कैश बैंक, खरीदेंगे पैसा जाएगा। राइट शेयर 12,000 इंटू 12,000 इंटू 10 बिकॉज फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर? राइट शेयर का वैल्यू है, राइट शेयर का वैल्यू है 20 रुपीज। क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड राइट शेयर का वैल्यू क्या है। राइट शेयर का वैल्यू है 20 रुपीज, 20 रुपीज। तो यहाँ पे वी विल राइट 12,000 इंटू 20, 2,40,000 बराबर डन, राइट शेयर का हो गया। इसके बाद on 31st December, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectrum Limited and 2,000 of Satyam Limited. Spectrum का कितने में? 30 में, सत्यम का कितने में? 27 में। पहले स्पेक्ट्रम का 5,000 शेयर्स का करते, कौन से डेट को? दिसंबर 1 को बाई सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है। कैश बैंक कितना शेयर? 5,000, तो 5,000 इंटू 10 50,000। कितने में सेल किया? 5,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 30 करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 5,000 इंटू 30, 1,50,000। एंड सेम वे सत्यम का 2,000 शेयर सेल किया 27 रुपीस में, तो यहाँ पे भी आ जाते हैं दिसंबर 1 बाई कैश बैंक, बाई कैश बैंक इट इज, बाई कैश बैंक इट इज हाउ मच? 2,000 इंटू 10 20,000 एंड 27 रुपीस में सेल किया। So 2,000 into 27, 2,000 into 27, is it coming 54,000? Now हम जब भी सेल करते हैं we have to find out profit loss. Whenever we sell we have to find out profit loss. तो स्पेक्ट्रम का 5,000 शेयर सेल किया और इसके बाद हमें सेम वी हैव टू डू लेस सेल ऑफ ईयर, इसका अगेन 2,000। सो लेट अस फाइंड आउट, वेट, लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस, लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस। तो फिफ्थ वन प्रॉफिट, पहला स्पेक्ट्रम का प्रॉफिट लॉस निकालते, प्रॉफिट लॉस
on sale of Spectrum. Spectrum, for profit loss on sale of Spectrum, how much it is? Spectrum का how much it is? Sale price. Spectrum का sale price is 1,50,000, correct? Spectrum का sale price is 1,50,000. तो अभी इसमें से लेस करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस. तो उसके लिए वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 8,40,000 इंटू 50,000, 8,40,000, 50,000 इंटू 8,40,000 डिवाइड बाई. अच्छा मैंने राइट शेयर्स ऐड नहीं किया है. ओ यस 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 यस, स्पेक्ट्रम में मैंने राइट शेयर्स ऐड नहीं किया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. योर स्पेक्ट्रम में राइट शेयर्स था जो मैंने ऐड नहीं किया. राइट शेयर्स कितना मिला? 12,000, 1,20,000 आई गॉट फॉर 2,40,000. सो ये कितना हो जाता है? 72,000, 7,20,000, and this becomes 10,80,000, correct? 10,80,000. Now I can do the sale here. 5,000 सेल करना है 50,000 में. सो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,80 किससे करना है? 10,80 ये बराबर है, पर डिवाइड किससे करना है? 7,20 से डिवाइड करना है, 7,20 से. सो हाउ मच डू वी गेट? सो हाउ मच डू वी गेट हियर? You get here 75,000. 75,000 मिल रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 75,000. सो इसी तक प्रॉफिट और लॉस आपका चीज है 75,000 का. यू आर गेटिंग 1,50,000. सो दिस इज नो डाउट प्रॉफिट. हाउ लॉस? आपका कॉस्ट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट, चीज का वैल्यू 75,000 और आपने बेचा सेल प्राइस 1,50,000. सो दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ 75,000. सो प्रॉफिट है. सो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, इट इज December 1 to profit and loss account. लास्ट कॉलम में प्रॉफिट ऑफ 75,000. नाउ वी हैव टू डू द सेम फॉर द नेक्स्ट कंपनी. नेक्स्ट कंपनी का करना है, that is profit loss of Satyam. Profit loss of Satyam. इसका सेल प्राइस क्या है? हाउ मच इज द सेल प्राइस ऑफ सत्यम? सत्यम का सेल प्राइस इज 54,000. जस्ट चेक अगेन, 54,000. फिर इसमें से लेस करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब वो चीज का कॉस्ट कितना है वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा. सो क्रॉस कितना कॉस्ट है? 20,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 80,000.
20,000 into 20,000 into 1 minute into 2 lakh divide by 80,000. 20,000 into 2 lakh divide by 80,000 कितना मिल रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? कॉस्ट कितना कॉस्ट मिल रहा है? कितना कॉस्ट मिल रहा है? हाउ मच कॉस्ट आर यू गेटिंग? 50,000. मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कॉस्ट इज 50,000 एंड यू हैव गॉट 54,000. करेक्ट. इट इज अ प्रॉफिट of 4,000. आपने your cost is for 50,000 and you have sold for 54,000. Means you have made a profit of 4,000. प्रॉफिट है तो अगेन हम लोग लिखेंगे दिसंबर 1 को टू, कहाँ लिखना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ मच? 4,000. नाउ कॉस्ट स्ट्रक्चर को एक बार कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे कितना कॉस्ट है? 75,000 ना. यहाँ पे है 75,000. तो लेस करने पे कितना आता है? 72,000 में वी सोल्ड 5,000, so 67,000. दिस बिकम्स 6,70,000 and this becomes 10,05,000. 10,05,000. सेम वे इधर मिला 50,000. सो क्या हो जाएगा? 6,000, 60,000, 1,50,000. चलो ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट. नाउ जस्ट क्लोज दिस. पहले क्या क्लोज करो? बिकॉज दिस सेल लास्ट था. इसके बाद कुछ भी नहीं है. लास्ट था ये सेल, तो इसको बंद करो. ये सबको ऐड करो. 4 लाख, 2 लाख, 7,20,000. 4 लाख, 2 लाख, 7,20,000. 6 लाख, 2 लाख 40, 8 लाख 40. सॉरी, 6 लाख, 8 लाख 40, 10 लाख 80. 10 लाख 80 प्लस 75,000 कितना हो रहा है? 11,55,000. करेक्ट. 7,20,000, 11,55,000. कभी ईयर एंड है? मार्च को स्टार्ट हुआ है तो 2013, सॉरी अप्रैल को स्टार्ट हुआ है तो 2013 मार्च 31 को बंद होना चाहिए. क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस कैरीड डाउन. 50,000 माइनस करो. हाउ मच यू विल गेट? 6,70,000 and 1,50,000 minus करो. What will you get? 11,55,000 से 1,50,000 minus करो. You will get 10,05,000. 10,05,000. यहाँ पे भी हमें वही मिला है 10,05,000. वी कैन क्रॉस चेक. देखो, नॉमिनल वैल्यू 6,70,000, कॉस्ट वैल्यू 10,05,000. यहाँ पे भी वही मिला है 10,05,000. इसके बाद वी विल गो टू द सेकेंड वन. इसको भी बंद करो. यहाँ पे क्या है? 1 लाख. यहाँ क्या है? 2,54,000. 1 लाख, 2,54,000. Now which day? 2013 March 31. March 31 को what we will write? By balance carried
डाउन. 1 लाख में से 40,000 गया तो 60,000 एंड यहाँ पे 44,000 प्लस 650 54,000. 104 गया तो हाउ मच विल रिमेन? बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1,50,000 आ रहे? 1,50,000. Are we getting this? 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000. So with this, we can check in the cost structure. 60,000, 1,50,000. 60,000, 1,50,000. We have got the same answer as the cost structure. So cost structure is important. And with this sum is done.